Soil is the habitat upon which zillions of lives thrive. Because of that thriving life, everything grows. We eat food, other animals grow, everything happens because soil is rich. Once there is no richness in soil, then you have forsaken the planet in many ways. Minerals, air and water, okay, and microorganisms, organic matter जिसको हम बोलते हैं, तो organic matter living and dead both, root zones, dried leaves, living roots, living organisms. So the breakup is 50, 25, 25. ये जो 25-25 वाला है that is air and water. तो उसी में से आप 5-5% कम कर दो. So it basically becomes 20-20-10. So that 10 is 5 is organic matter rather, 5%. And out of that 5%, the remaining 5 is the living वाला and the 5% is the dead वाला. जो मैं कंपोस्ट डाल रहा हूँ या फिर उसमें जो डिकम्पोजिशन हो रहा है नेचुरल रूट्स और उसका सब. सो इमेजिन हैविंग 20% एंड 20% एयर एंड वाटर इन सॉइल. तो ये क्लम्प में अगर पकड़ता हूँ तो इसमें 50% ये चीज़ होनी चाहिए और 50% वो होनी चाहिए जो आपको दिखाई नहीं दे रही. एक तो पानी है जो मॉइस्चर फॉर्म में होना चाहिए, एयर है और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दैट्स द बेस्ट soil for farming. How to achieve that is your work as a farmer, gardener, basically. And to make that, whatever best practices are targeting only that. More oxygen, more breathing, more organisms, and sub effects. So that's the environment. तो इसीलिए जब भी हम ऊपर जाते हैं तो मैं पहले खोद के देखना हूँ, निकाल के देखता हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि कितना पोरस सॉइल है या फिर कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो एक आध अर्थवर्म साइटिंग हो गया इज नॉट इनफ. यू शुड ooze out. So of course earthworm is major this thing, but earthworm नहीं रहेगा तो भी उसके अलावा millions and zillions of micro organisms है जो काम कर रहा है. So when it comes to a level where you see earthworms everywhere, we are like a successful market gardener. Then you have more nutritious soil, very good yield and quality of vegetables. That's where the quality. So what we are doing is we are working on that. So earthworm should come by its own, or we should grow earthworm and then put it No, in the soil? वो by default है. By अब default. बाहर से डालोगे तो टिकेगा नहीं. Soil is Because see, earthworm is its skin is not skin. It's almost like just a thin layer on its actual being. So it's constantly in touch with soil. So if soil is not good, it's going to die. मतलब even if you salt. put it from outside, it won't live. ऐसे. तो वो soily ideal होना चाहिए. तू सोच ना, you just what it does is it goes down. While going down, it eats stones, Okay. soil, anything that it comes across. It will just eat. We wonder what it is, but it's a drill machine. It can just go through anything. It will go down, okay, and just पेट भर गया, it will move aside, come up, shit it. Okay. So all the minerals that it has collected on the way, earthworm का जो gut रहता है, Rather digested digestive in system, the way. it is millions of bacteria that you cannot imagine. Millions. They all process that. They absorb the nutrition for the earthworm, and what comes out is like just cow dung. It's like yellow plant. This is life. Now what it has done, it's made a hole. तो उसमें से ऑक्सीजन आ रहा है, वो बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन वगैरह सब मिल रहा है. एंड इन एडिशन इट्स लाइक सर्कुलेटिंग ऑल द मिनरल्स अप एंड डाउन. So there are counts for. So how deep it goes? So there are types of earthworms.
The earthworms will go across deep surface. Oh. So you have to have combination of all. So the one that you found is a deep one. So One that is very sticky and very blackish. We might have seen here. so that's not Thin an one, the earthworm. thin one. That's not an earthworm. Ah. It will be very slimy. Yeah. So that's not an earthworm. It's one of those protozoas and whatever you find during the rainy season. So earthworm will always have a band. हाँ, एक साइड पे नीचे नहीं बैंड्स होगा बट उसका पूरा लेंथ के एक साइड में कहीं पे एक हाँ, एक बैंड है। होगा हेड के तरफ, गर्दन का जैसे Yes. पोर्शन में। दोनों तरफ से फेस होता है. हाँ. They can eat from both sides. No, नहीं, it will got face pretty much, and it will go in one direction mostly. It does not have eyes as such. That's because they don't need it. You've seen Tremors or what? Tremor movie. So that creature is one of those they've inspired from under the soil creatures. एक blasted like मैंने तो जो pumpkin. पढ़ा था वो बोल दिया. हाँ. क्या? मैंने तो जो पढ़ा था वो बोल दिया. दोनों तरफ. हमने भी देखा वो दोनों तरफ जाता है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है. नहीं, आगे मुंह के जो अगर ब्लॉक करेगा तो पीछे की तरफ भागता है वो, लेकिन वो ट्रेन जैसा है. हाँ. पीछे भी ऐसे पुश कर लेता हूँ. So आगे डेंजर है तो पीछे. but then earthworms का quantity is pretty much decided कि इतना earthworms होना चाहिए इतना एकड़ में. वो कैसे बोल I Just don't अंदाज remember a लगे. lot. नहीं अंदाज नहीं वो मतलब like 200 earthworms in so many square feet is like now your soil is done. So I was studying ZBN of them and in his books they have mentioned कि आपका एक गुंठा में इतना earthworms होना चाहिए. तो वो देख के मैं मतलब We did that वर्मी कंपोस्ट का बेड भी किए थे हमने. We used to get that culture. सीटोफिटेड वो तो वर्म था जिसको ये लोग अर्थवर्म बोलना नहीं चाहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले या फिर ZBNF वाले. तो बोलते कि दैट्स ऑफ कोर्स नॉट अ नेचुरल अर्थवर्म इन आवर सॉइल्स. So it is only for decomposition. So, and it's a fast decomposer. It eats everything that comes across. लेकिन फिर then we started getting resistance from people who are buying vegetables. They said like we are not going to buy vegetables of those earthworms of vermi compost वाला because now the word is out that उसमें से arsenic excreta भी होता है which leads to cancer. So and then we tried finding out, we didn't find any material online. People when we talk, but then there is a big valley between scientists, these people like Parekar or permaculture, and बीच में सब बैंड होता है. तो ये एक्सट्रीम होगा, बीच में के लोग है like इनका सुनो and confused. Then few of course get connected to something. We choose to be in middle. We'll take best of everything. So if the market is not accepting vermicompost, we'll figure out some other way of doing it. Just imagine like we have few earthworms. Yes. And we need more quantity, so we can grow and because some earthworm already can live, so that makes our soil. Or it should come from. That's a nice question. So that one earthworm, okay, that type of earthworm exists in this soil because it's strong. Okay. Now उसका वो काम चल रहा है, वो कर रहा है, ठीक है. उसको अगर मल्टीप्लाई करना है ना, तो सॉइल इम्प्रूव होना चाहिए. अगर इतने मुझे नहीं मिल रहे हैं तो द ओनली रीजन इज सॉइल इज नॉट रेडी. तो खुद ही वो प्रोड्यूस कर देगा. हाँ, अगर उसको वो एनवायरनमेंट मिला तो वो करेगा. यू विल फाइंड देम एवरीवेयर. थोड़ा कीचड़ मिट्टी होगा. नहीं वैसा नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए उसको, पीएच बराबर चाहिए उसको, खाने के लिए खाना चाहिए उसको, मतलब पत्थर जो खा रहा है उसके साथ जो पेट में जा रहा है. तो इसलिए वो CN रेशो आपको पढ़ने के लिए बोला था मैंने. तो ज़मीन का CN रेशो क्या है आपको पता होना चाहिए. उसका मेन जो फीडिंग है वो उसे मिलना चाहिए, जो कि मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर दोनों का तभी मिक्सचर वो होता है. और दूसरा होता है उसका एनवायरनमेंट. उसका एनवायरनमेंट मॉइस्चर एंड ऑल दैट. जमीन उसको चिपकी हुई है स्किन को, करेक्ट. तो एयर और पानी का कॉम्बिनेशन चाहिए. मतलब अगर लैंड कॉम्पैक्ट हो तो इट कैन नॉट मूव अराउंड. राइट. You've seen that Paul Kaiser presentation वीडियो देखा है आपने? तो उसमें उसने एक मेंशन किया है कि उसका नेबरहुड में बारिश गिरा
इतना बारिश गिरा कि दूसरे के जमीन पे पूरा पानी फ्लोटिंग था और उसका जमीन में पानी फ्लोटिंग नहीं था, इट जस्ट गॉट अब्सॉर्ब। तो वो जो पोरोसिटी वी आर टॉकिंग अबाउट 25% एयर एंड 25% वाटर, सो द सॉइल हैज द स्ट्रेंथ ऑफ कन्वर्टिंग दिस बैंक इनटू ओके ये 50 भी यूज कर लो 50% एंड अब्सॉर्ब मोर वाटर। इट विल मेक श्योर द soil doesn't get flooded. A good quality soil, no matter how much rain falls. So that's possible through the porosity. But to get to that level, that like soil has slits, soil has sand, and then clay. All these 5-6 supposed to be in their quantity, proper quantity to have that balance. नहीं ऐसा कुछ Not necessary. No. So all types of soil will. So no, this is our learning. किसी को बोलोगे कि यहाँ पे खेती करोगे क्या, किसी कंसल्टेंट को या किसी फार्मर को बोले इस पे नहीं करेंगे खेती, ये अपना जो ज़मीन है उसके ऊपर। किसी और को बोले कालिया माटी चाहिए, एवरीवन ब्लैक कॉटन सॉइल। सो आई फील दैट इज अ बिट ऑफ ओवर स्टेटेड स्टेटमेंट। अब सब्जी सब जगह कि दैट स्टेटमेंट कम्स आउट थ्रू देयर ओन बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस, कि उन्होंने अगर एक्सपीरियंस किया है कि काले मिट्टी में उनको अच्छा रिजल्ट आया एंड अदरवाइज नहीं आया विदाउट एनी रिसर्च और कि क्यों नहीं आया, तो दे विल वो मान के चलेंगे कि ब्लैक सबसे अच्छा। और सब फार्मिंग वहीं पे हो रहा है, पैसे वाले लोग भी वहीं पे। द कोल्हापुर फार्मर्स आर वेल टू डू कंपेयर टू परभनी और दिस। सो दिमाग में है कि द टाइप ऑफ सॉइल इज गिविंग द यील्ड, द थिंग इज दैट दे हैव गॉट मोर वाटर आल्सो। Right. There is no water in Jalgaon, right. So you have got Jain irrigation. Correct. Doing everything in Jalgaon, having the best of the culture, supplying across the world, export quality. So you have to do that thinking. You should start filtering the information. मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्लैक कॉटन सॉइल है अच्छा है, तो आपको सोचना है कि ब्लैक कॉटन सॉइल ये बंदा किस वजह से बोल रहा है वैसे। या फिर उसने क्या किया है, हाँ. वेदर फ्रूट्स ही किया या सब्जी किया या ग्रेन्स किया, व्हाट। सो हमारी सॉइल भी ब्लैक हो सकती है? नहीं, it doesn't have to be black cotton soil. It has to be good soil. So you said कि वो silt और so black cotton soil में पानी का logging बहुत होता है। ये पानी अगर उसमें गिरेगा and if there is not that organic matter, the amount that I'm talking about, then it's going to go bad. आपका पेड़ सड़ने वाला है क्योंकि वहाँ ज़्यादा एनारोबिक होती है। अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा है, वहाँ पे हवा ही नहीं है, वो इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसमें पैर भी डालोगे पैर फंस जाए, चप्पल आपका अंदर रह जाएगा, चप्पल टूट जाएगा, घूम जाएगा। ऐसा इतना डिस्टेंस चलोगे काली माटी में तो आपका चप्पल घूम जाएगा, वंडर अभी कहाँ गया, इट जस्ट डिसअपियर्स। एनीथिंग दैट यू पुट इन ब्लैक सॉइल डिसअपियर्स। So that's because it doesn't have and capacity. that black is not due to organic matter. अच्छा। It is The clay part of it. the source part of Yeah. it. I would like Yeah. to say कि rock कौन सा है, वो कौन से एरिया में है, कि volcanic eruptions Yeah, के that's a time nice point she said. That's the oldest soil. राइट। This is the newest soil. हाँ, got it। मोटा मोटा मैं आपको मतलब बताने उसमें की कोशिश कर रहा नदी हूँ। के कार्बन पास ज्यादा होगा, है। इसलिए बैक हो गया। उसका बाय डिफॉल्ट कार्बन मैटर ज्यादा होना चाहिए। So organic carbon of black soil Right. should be very high. If it's not there, it's only because organic matter is not there. Correct। आपने खेती तो किया हाँ। सालों से, ठीक है, अभी 100 साल पहले आपने केमिकल फार्मिंग शुरू कर दिया, तो आपका ऑर्गेनिक मैटर डालना भी आपने कम किया। तो पिछले 50 सालों में जितना ऑर्गेनिक मैटर जाना चाहिए था उतना गया नहीं है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल शुड गिव यू डिसेंट OC. I have never seen a report, but it should give about 1.5 in our condition, temperate. But अभी मैं जितना भी सुन रहा हूँ तो किसी का भी एक के आगे नहीं जाता है। एंड फिर उसका डिमांड्स भी अलग होता है। तो काला And I guess सॉइल कि जो black cotton soil है उसका holding capacities are bigger. Holding मतलब जो buyer है उसके पास ऐसे 2-4 एकड़ नहीं रहेगा, बड़े they have a bigger chunk of land. नहीं, डिपेंड्स। अभी तो माइक्रो लैंड होल्डर्स ही होगा सब, उसमें लेस भी है देन क्या? एवरेज 5 acres, बट दे हैव बेटर यील्ड्स, सो यू विल हैव अ गुड शुगर केन यील्ड इन अ ब्लैक कॉटन सॉइल कंपेयर्ड टू। तो वहाँ के लोग पहले 70-80 टन के नीचे बात ही नहीं करते थे। तो अभी सांगली पूरा हैज बिकम सैलिनेटेड with over irrigation, no
ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, सफ़ेद हो गया सॉइल पूरा. सो वी हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर्स, ही इज फेसिंग दैट प्रॉब्लम. सो 8 फुट नीचे खोदोगे सिर्फ काला मिट्टी, ठीक है, और 6 फुट नीचे पूरा पानी जमीन में, जो पूरा पैक हो गया पानी से. कॉम्पैक्ट तो बारिश हो गया, नहीं पानी, आपको पानी ही मिलता है वहाँ पे, अच्छा. कीचड़ मिलेगा. ऊपर का 3-4 फुट सूखा रहेगा, उसके नीचे पूरा पानी, एंड इट्स ऑल ब्लैक कॉटन सॉइल, और ऊपर का मिट्टी पूरा सफेद. उसको वापस ऊपर नहीं ला सकते. लाओगे कैसे? जेसीबी जाएगा तो जेसीबी फंस जाए. तो उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है उनको, दे आस्क्ड देम टू पुट रिलीजिंग दैट वाटर टेक्निक. आई डोंट नो, ही सेड समथिंग. सो व्हाट दे हैव डन इज 3 फुट नीचे, 3-4 फुट 6 फुट नीचे जेसीबी एंड ऑल यूज करके पाइप्स लगा दिए उन्होंने, और वो पाइप से, और वो पूरा पानी जमीन के बाहर निकाल दिया. मतलब जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इतना मेहनत लिया. All they had to do was put organic matter regular basis. That land went out of his ambit. Nothing could grow on it. So when you say कि वो proportion होना चाहिए, proportion के पीछे मत भागो. जो soil आपको मिला अभी वहाँ से शुरू करना. So of course I will give you a minimum understanding कि ऐसा भी soil मत लो type. So if you are on a hill, I'll say okay, don't do there anything type. But this soil is the best soil to work on if you are doing a vegetable garden, because this has got a good drainage. Major insects, pests happen because of poor drainage of the soil. So if you manage this soil well, this will be a very good vegetable garden. देख के पता चलेगा कि मैंने हाथ से ऐसे नहीं. हाँ. तो और बता. बट क्ले है, मतलब काफी क्लेइश है. हाँ. तो हम लोग जब निकाल भी रहे थे ना, इसमें पानी लाना, रेड वाले में लाना. आता तू घाई नको ना करू. ये रेड वाला. पीने का. हाँ, पीने का पिए और उसमें डाल सकते हैं. वो ले लेते हैं ना. नहीं, बहुत थोड़ा उसमें चाहिए रे बाबा. ये इसमें ना हाँ. जार. मी घालू का? और पानी डाल और छोड़ दो इसको. हाँ. और So basically it shouldn't break apart. अच्छा. So are the particles holding each other in water? राइट. So what you have to do, you do the same test उधर with the topmost soil. ओके. जो जहाँ पे कुछ भी नहीं, मैंगो से नीचे वाला, जहाँ पे वो जाली है हाँ हाँ. वहाँ पे. तो उसमें से भी थोड़ा सॉइल लेना है आपको, और उसका नेचुरल एग्रीगेट चाहिए, ऐसे हाथ से बनाया हुआ नहीं चाहिए. ओके. तो धीरे धीरे ब्रेक करके इतना छोटा लेके उसको छोड़ना है इसके अंदर, एंड यू हैव टू सी द डिफरेंस, देन यू विल गेट टू नो. मैंने तो इसको खाली देख के पता नहीं चलेगा. यू सी दैट ब्रेकिंग एंड दिस नॉट ब्रेकिंग, यू विल गेट टू नो द डिफरेंस. ये भी ब्रेक होते वक्त भी द एग्रीगेट्स आर ब्रेकिंग, द सॉइल स्टिल होल्डिंग. या. तो ये जितना ब्रेक करेगा और नहीं करेगा, यू हैव टू कीप ऑन सीइंग इट. दैट्स द स्टेबिलिटी that soil is gaining Due to humus and due to humus and whatever activity. Bacterial your best content. practices काम कर रहा है कि नहीं. Best way to figure out is, हाँ, what you can do is जो नीचे वाला soil है ना, उसमें से कलेक्ट करता है. ये बाजू वाला जो plot है, तो it's like totally robbed off. बारिश होके बह गई, तो उसमें से एक natural clump लेना है आपको, hardly 1 centimeter, उसको ऐसे रखना. I saw one video where he took the soil samples from. One is tilling has been done, been done on the, and one is not rich and not. So shown in the video, once you put the tilling one, just mix in the water. breaks apart. Breaks apart. That's the problem with tillage and non-tillage, because non-tillage में वो ज़्यादा रहता है. So that's where your progress should always be कि tillage से you move towards zero tillage. Yeah. That all depends on quality of soil. So when we started farming, no, we were too much kicked up about this idea of no tillage.
वन वॉज बिकॉज ऑफ नेचुरल है, नेचर क्लोज है और उसमें लेबर कम लगेगा, तो एक सेल्फिश उसमें अप्रोच भी था। एंड जब हमने एक्चुअली फार्मिंग शुरू किया तो नो टिलेज पे काफ़ी किया हमने, मतलब इतना कि इस पे पैर मत रखो, वो मतलब अभी जितना वो चिल्लाई ना तुझे, तेरा पैर गिरा तो जमीन गिर, तो शी वुड हैव हैड ब्लास्टेड यू ऑफ इन दोज डेज। लाइक वी यूज्ड टू फाइट विद पीपल, आई नहीं चिल्लाया था, एंड संजू वुड जस्ट वॉक ऑफ द बेड and we would have big fight. But what happened then, again we evolved our learning. Okay, no tillage, but is the soil ready for it? Then we met few farmers who are doing like us, and they said like, how जब तक तैयार नहीं हो रहा है आपको थोड़ा तो एरिएशन करना है, एरिएशन ही नहीं रहेगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी वैसे। एंड मतलब we have to reach till that point कि ये no till हो जाए या फिर मिनिमम मिनिमम टिलेज हो सकता है। द प्रॉब्लम इज ये जो कॉम्पैक्शन है अभी वो रिलीज होना चाहिए, और हर एक का सॉइल अलग बिहेव करता है। अभी जो अपना सोलापुर वाला रोड वाला सॉइल है वो पूरा काला है और अपना पूरा अलग है, तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज में वहाँ पे डिफरेंस आता है। ऑर्गेनिक मैटर इज द की सोर्स वी गॉट टू नो, वी हैव सीन द डिफरेंस और उसको फिर इवॉल्व करना। ड्राय होना चाहिए। तुटेल ना त्याच्यात पाणी नाही डाल ना, हे झालं ना विरघळलं ना थोडं, थोडं ते तर ते परत कळेल आपल्याला। ठीक है, बस बस दोन आहेत लगेच. ठीक आहे।